Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a quick short video that I am making today. I'm going to talk about RSI and how it has to be used in a correct fashion. और it can be applied on anything, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स कहीं पे भी. फिलहाल अगर हम निफ्टी की बात करें, we can clearly see it's under pressure. The date is 12th December, but as I mentioned earlier, 12th December is not necessary the exact date. It can be plus minus basis of the cycle. मतलब 3-4 days plus minus हो सकता है उसमें, because it's a time cycle and time is a very dynamic component. But overall view on the market still remains the same. Right now, short term there is a pressure. Post its completion, upward move should start, but confirmation चाहिए हमें एटलीस्ट ब्रेक अबाव क्लोज अबाव प्रायर डे हाई चाहिए आइडियली. नहीं तो एटलीस्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है. लेट्स सी व्हाट द फेड मीटिंग कम्स. वी विल सी व्हाट हैपेंस देयर. बट एक मार्केट है जहां पर अच्छा रिवर्सल मिला है, वो है इथेरियम पे. So I'm going to talk about RSI application. You can apply it on crypto, you can apply it on Nifty, you can apply it on Bank Nifty. ये strategy आप सभी पे apply कर सकते हो. So let us look at it. Let me very quickly share across my screen. And if you're liking the short videos जो मैंने कल भी बनाया था, अगर उस टाइप के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए, नीचे कमेंट में डालिए, चैट पे डालिए, so that I know you are liking these kind of videos. इफ आई लुक एट दिस क्रिप्टो, सो पहली चीज क्या है, हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके वी हैव टू गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड आई एम गोइंग टू रिमूव दिस एंड लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड इन दिस स्पेसिफिक मार्केट. दिस इज बिटकॉइन. और वोलेटिलिटी बहुत होती है दोस्तों. डू रिमेंबर, when you are trading into any markets including crypto, it is risky. Maintain stop loss, derive targets, have understand the risk, and also we are SEBI registered research analyst. What I am doing here is purely from learning educational perspective, and there is no guarantee in the market. Do remember that. So यहाँ पर and there is always a risk. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न हम जो बनता हुआ देख रहे हैं. देयर वाज अ शार्प sell off which we saw in the crypto on Bitcoin, and I mentioned about it when prices were at this zone. वहां से already काफी sharp sell off आया and prices went down on nearly 25-26%. Now we are seeing some kind of a reversal on the upside. मैं दो इंडिकेटर यहां लगा रहा हूं. वन इज एन RSI एंड वन इज बॉलिंगर बैंड्स. ठीक है, ये दो इंडिकेटर बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं. पहली चीज, RSI इंडिकेट्स स्पीड ऑफ द मार्केट. इफ इट इज अबाउट 60-70, फॉर मी द स्पीड इज स्ट्रॉन्ग. Many people say if RSI is above 72, you sell the market. Nahi. If you are going at a speed of 80 kilometers per hour, will you be selling it? You will be rather looking for buying it on dips, because RSI overbought है. Overbought is not defined as 70 is overbought, 72 is overbought, 80 is overbought. नहीं. ओवरबॉट के लिए आपको जाके पहले देखना है कि कहां से बार बार वो रिवर्स हो रहा था. So if I am looking at it, I can see that RSI has been reversing again and again from 67, 68 levels. उसके बियॉन्ड गया था, लेकिन ये रेंज ज्यादा कॉमन है. सो मेरे लिए 67 बिकम्स एन ओवरबॉट राइट नाउ. ओवरसोल्ड क्या है यार, ये बार बार सपोर्ट ले रहा है अराउंड 34 के आसपास. दिस टाइम इट वेंट अ लॉट लोअर, बट 34 इज वेयर इट इज टेकिंग सपोर्ट. सो दैट बिकम्स माय ओवरसोल्ड. सो डू नॉट यूज RSI एज अ नंबर. कोई मैजिक नंबर नहीं है कि 70 ओवरबॉट है. नहीं, यू हैव टू डिराइव इट. ये डेली पे, आवरली पे अलग ओवरबॉट ओवरसोल्ड मिलेगा आपको. And 50 becomes crucial क्योंकि 50 is where the average of up closes is more than the down. So 50 is important. But remember one thing, भाव भगवान से, price is God, and do not fight the trend. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इफ आई एम लुकिंग एट 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट, फॉर मी ऑन 1 hour टाइम फ्रेम चार्ट, यार यहां से ये बार बार बाउंस बैक हो रहा है. कैन यू सी दैट? अगर नीचे जाता है, दिस इज दी oversold area. So around 27-28 is the oversold area. And so that becomes my oversold area on Bitcoin. Now on the upside, this becomes my overbought area, which is around the area of 67.
अभी फिलहाल 50 के नीचे है तो गड़बड़ है, बिकॉज 50 के नीचे है तो मोमेंटम कम है. ना व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिंपली लुक एट इट, व्हाट इज द ओवरऑल ट्रेंड. बैंड्स के ऊपर बंद हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने हाई निकाला, मतलब ट्रेंड है बाय साइड पे. एज ऑफ नाउ इट इज नियर द लोअर एंड ऑफ द रेंज ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम. नाउ आई हैव टू वेट. वेट फॉर व्हाट? prices needs to go back about the mid band. Mid band जो दिख रहा है आपको, it's nothing but a 20-day moving average. 20-day moving average के अगर ऊपर आता है, there is a sign, there is some kind of a positive reversal that we are seeing. So I need a positive reversal. Once I get a movement around here, ये 1 आवर थोड़ा बड़ा हो जाता है, मैं स्कैल्पिंग वाले पे जाऊं, 15 मिनट्स पे जाएं. वंस आई गेट अ पॉजिटिव रिवर्सल अबाउट द मिड बैंड ऑन आवरली, मेरे लिए बाइंग और कन्वीनियंट हो जाए. या मुझे जल्दी लेना है, मुझे उतना वेट नहीं करना, सो टाइम फ्रेम चेंज करके इस पे आ जाओ. नाउ वंस आई एम ऑन दिस, आई नो द मिड इज नाउ एट 92,327, 92,330 ले लो. अगर उसके ऊपर 15 मिनट बंद हुआ एंड माई आर एस आई इज अबाउ 50, आइडियली अबाउ 60 होना चाहिए. लोग बोलते हैं 60 के ऊपर ओवरबॉट होता है, नहीं, मेरे लिए तो 60 के ऊपर स्पीड बन रही है, मोमेंटम बन रहा है. सो वंस आई सी इट गोइंग अबाउट 92,330 एंड आरएसआई क्रॉसिंग दैट 55-60 मार्क, इट इज क्लासिक अपॉर्चुनिटी टू एंटर. उस तरीके से देखना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, मेरा डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 15 पे डिराइव करना है. दैट इज मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग. इफ माई डेली इज डाउन, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, प्राइमरी ट्रेंड नीचे है, सेकेंडरी ट्रेंड नीचे है, तो ये जो माइनर ट्रेंड है 15 मिनट का, उसमें पैसा डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में बनाना इजी होगा? विच डायरेक्शन? इट हैज टू बी डाउन. सो बट इफ माई डेली टर्न अप, हाउ डू आई नो? थ्री कैंडलस्टिक रूल, विच आपने मेरी मास्टर क्लास में देखा. ओके, माई डेली इज बाय, ठीक है, विच मीन्स प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है, आवरली सेल में, मतलब गड़बड़ है, तो वेट करना होगा. लेट आवरली टर्न्स बाय, then go to 15 minutes and look only for buying opportunity, do not look for selling opportunity. सिंपल है, क्लासिक है, काम करता है. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट को इथेरियम पे अगर आप देखोगे, सिंपल से कॉन्सेप्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखते क्या हो रहा है. वी कैन सी दिस इथेरियम ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्लासिक ऊपर आया, रीटेस्ट किया, रिवर्सल हुआ, हायर हाई हायर लो, मतलब यहां पर जो मंदी थी वो खत्म हो रही है और तेजी. आई टर्न बेरिश हियर, नाउ आई एम सेइंग इट इज टाइम टू बी बुलिश ऑन क्रिप्टो अगेन, बिकॉज समथिंग इज चेंजिंग एंड वी कैन सी इट फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रायर प्राइस एक्शन. दिस इज द सपोर्ट और मोमेंटम 50 के ऊपर, मतलब डेली तो सेट है, सिग्नल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है. आवरली पे जाना है, आवरली पे क्या हो रहा है? बाय है, कंसोलिडेट हो रहा है, आवरली सेट है, फिलहाल थोड़ा कूल ऑफ भी हो गया, आवरली सेट है, मतलब अभी मुझे बाइंग ढूंढना है खाली. 15 मिनट पे जाके 15 मिनट पे आ जाओ और यहां पर फॉल्स सिग्नल मिलेगा, ट्रैप होंगे, लेकिन जब ट्रैप हो रहे तो छोटा सा नुकसान करो, जब सही जा रहा है तो बराबर से कमाना है. आवरली पे मिड के ऊपर आ चुका है, क्लोज हो चुका है हाई, तो यहां पर बाइंग है, 50 के ऊपर है. सो दिस इज वेयर आई कैन पुल द ट्रिगर एंड टेक अ ट्रेड. एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, यहां पर आप जाके यू कैन इवन ट्रेड, नॉट नेसेसरली आपको एक बिटकॉइन में ट्रेड करना है, यू कैन ट्रेड इवन इन, सॉरी, एक इथेरियम में यू कैन इवन ट्रेड इन 0.01 वन लॉट. मार्जिन रिक्वायरमेंट आप यहां से देख सकते हो, फंड रिक्वायर्ड, सारी चीजें यहां से आपको मिल जाएगी. बेस्ट बिड अगर मैंने किया, फंड्स रिक्वायरमेंट यहां पे आपको मालूम चलेगा, हार्डली कुछ ही. अगर मैं एक इथेरियम भी बाय कर रहा हूं विच इज कंप्लीट इथेरियम ऑफ $3,300, 45x leverage है, more leverage, more risk, but you can scalp it very fast, very easy. Crypto moves very fast, you have to be careful and you can do that. यहाँ भी options है, there are different strike price. So what I would suggest is you can experiment, don't do it, just experiment. You can do it with $1,000 also. Try and experiment with it. Ensure maintain stop loss. Do not carry risk. If you are sleeping, stop loss डाल के जाओ and just see if it works. And these same concepts can be applied anywhere. So नीचे link है, you can go on that link. Check, this is Delta Exchange platform. You can check if it works for you. You can use any platform.
So what I'm saying, वहां पर लिंक है, आप जाके देखिए. Does it work for you? And it is very simple. And try it out. So you have to shuffle around when the market, which market is working, which market is trending, which market is predictable, and trade in that market. So it works for me. I thought I'll make a very short, quick video for you all and apply that. And if you're liking these kind of short videos, do not forget to put down in your comment and let me know. I'll keep making such videos for you all. Thank you very much, guys. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kal signing off.